हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इंटर स्टेट रिलेशंस इन परसुएंस ऑफ आवर रिवीजन क्लासेस फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. See, polity is such a beautiful subject that somewhere between 10 to 15 questions is asked every year. And if you do this subject really well, somewhere between 80% accuracy you can ensure for yourself just by reading Lakshmikant, coupled with selective reading of the Bear Act plus PYQ. You don't have to run for the test series also. Don't go for polity test series from the market. पॉलिटी की टेस्ट मत लगाइए, उस टाइम को आप अपने पीवाईक्यू में इन्वेस्ट कीजिए। ये एक्सरसाइज आपको इतना हेल्प करेगा, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू सो मच दैट इट विल बर्डन यू। जो आपका ओवर बर्डन हुआ पड़ा है कि 500 टेस्ट लगाना है, प्लस आपको जब आप पीवाईक्यू करने लगेंगे, देखने लगेंगे, सो यू विल बी नोइंग प्रिसाइजली वेयर टू हिट द बुल्स आई, राइट? यू विल बी टारगेटिंग द प्रिसाइज पॉइंट। ये ब्यूटी है आपको पीवाईक्यू की और ये ब्यूटी है पॉलिटी की। और पीवाईक्यू की बात हो रही है तो वी एट धर्म क्षेत्र आर ब्रिंगिंग मोस्ट लाइकली पास्ट 25 years ऑफ पीवाईक्यू विल डिस्कस हियर। नॉट जस्ट कि क्वेश्चन पढ़ लिया एंड इसके आंसर बता के निकल गए, वी विल बी डीलिंग विद कंसेप्ट्स एज वेल। एंड वहां से आपको फिर आप जब रिवाइज लास्ट के 15 days में आप कैसे रिवाइज करेंगे, आप वहां से आपको पता चल जाएगा कि किन एरियाज पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। और क्वेश्चंस कैन बी आस्क एज सेम के सेम क्वेश्चंस उठ के आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। आपके पास्ट 15 years के क्वेश्चंस तो रटे होने चाहिए, बिल्कुल टंग पे होने चाहिए, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू दिस ऑल्सो फ्रॉम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स। आज हम इंटरस्टेट रिलेशंस रिवाइज कर रहे हैं, कल हम इमरजेंसी स्टार्ट करेंगे, टुमारो कल हमारा इमरजेंसी फिनिश होगा। So you have lot of resources at your disposal, lot of support system. Do this subject well. Simultaneously कल हम यूरोप मैपिंग भी करेंगे. So everything is aligned for you. अपने एनर्जी को बस अपने गोल के अलाइनमेंट में रखिए एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ठीक है, यही वो समय है जहाँ पे आप धीरे धीरे गिव इन करने लगते हैं। यू जस्ट हैव टू होल्ड योर सेल्फ, राइट? कोई भी फियर, कोई भी डाउट, अपनी एनर्जी फील्ड को ना हायर वाइब्रेशन पे रखिए, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। किसी भी तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आपको इंटरटेन ही नहीं करना है, राइट? चलिए, so let's start interstate relations. See, to ensure the committee, to ensure that cooperation and coordination among the federal units of the government, that is center and state, the constitution has made various provisions that we have seen in center-state relations under 3 headings: legislative, administrative and financial relations. Similarly, to ensure that there is a smooth cooperation and coordination between states, and also there is an interstate committee. To ensure these things, the Constitution has made certain provisions that we have to read while discussing interstate relations. So जब हम interstate relations discuss करते हैं तो precisely we are going to do 4 articles. First is Article 262, under which we will be dealing with the adjudication of river disputes, interstate river disputes. Second is Article 263, under which we will be dealing with interstate council. Third is Article 261, and under which we will be dealing with full faith and credit clause. And fourthly is Article 301 to 307, and under which we will be dealing with provisions of freedom of trade, commerce and intercourse and associated restrictions. तो बेसिकली इंटरस्टेट रिलेशंस में हमें 4 चीज देखते हैं। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन के क्या मैकेनिज्म्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरस्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 से डील करती है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज ऑफ all public acts, records and judicial proceedings of the central and state government under Article 261 and its mechanism of enforcement, and fourthly, freedom of trade, commerce and intercourse throughout the territory of India.
that is dealt with is from articles 301 to 307. So एक एक करके हम इन चारों को देखेंगे. Besides these constitutional provision, there is also another statutory provision known as zonal councils that as established by Parliament to promote interstate cooperation and coordination. याद रखेंगे आप कि देखिए ये तो फंडामेंटल सवाल है, पूछा हुआ भी सवाल है और फिर से यूपीएससी पूछ सकती है कि जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है. जोनल काउंसिल्स का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, ये कहीं भी मेंशन ही नहीं किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में. सिर्फ काउंसिल देकर के इंटरस्टेट काउंसिल मत समझ जाइएगा. इंटरस्टेट काउंसिल्स आर प्रिसाइजली मेंशन्ड इन आर्टिकल 262, वहां पे उनकी रेफरेंस है और अपनी अथॉरिटी आर्टिकल 262 से डिराइव करती है. दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस है, जहां जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको एस्टैब्लिश कर रहा है. बट इफ यू टॉक अबाउट जोनल काउंसिल, दे हैज बीन नोवेयर डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं भी इनका जिक्र नहीं है. तो इनका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ? पार्लियामेंट by enacting an statute has established zonal councils. So that's why zonal councils are statutory bodies, क्योंकि पार्लियामेंट ने स्टैट्यूट बनाकर, लॉ बना करके, एक्ट बना करके इनको एस्टैब्लिश किया. सो रिमेंबर, जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. क्लियर है ये? अब आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? मुझे आपसे पूछना होता है क्वेश्चन, तो मैं ऑप्शन देती, एक क्वेश्चन देती कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म. वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू इंश्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. राइट, और उसमें मैं इंटरस्टेट काउंसिल भी डालती और जोनल काउंसिल भी डालती. सी, इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, ये दोनों मैकेनिज्म हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए. बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्पेसिफिकली? कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जोनल काउंसिल का जिक्र नहीं है. अभी हमने देखा जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरस्टेट काउंसिल का जिक्र है, और प्रिसाइजली किस आर्टिकल में. सो इस तरह की बातों को आप ध्यान रखेंगे. जो आपका कमांड है, की कमांड है, वो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो बिगिनिंग से एंड तक पढ़ें. एग्जैक्टली पूछा क्या गया है. आपने जब स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हाफ हार्टेडली ना पढ़े कि यहाँ तक समझ में आ गया, हो गया. लास्ट में एक वर्ड आ जाएगा और आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट का गेम बदल सकता है. सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स. सो एक एक करके हम चारों पिलर्स पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को देखते हैं. When it comes to adjudication of interstate water disputes, Constitution under Article 262 has made two provisions. Constitution में interstate water disputes के adjudication को 262 से डील किया गया है, और 262 के अंदर दो provisions है. First, under 262 clause 1, Constitution authorizes Parliament that Parliament by law can provide for the mechanism of adjudication of interstate water disputes and related river valleys. किसी भी रिवर वैली या फिर रिवर के वाटर के यूज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर कंट्रोल हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, इसका एडजुडिकेशन कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई पार्लियामेंट करेगी, और कैसे करेगी? लॉ इनेक्ट करके करेगी. सेकेंड, ठीक है. अंडर 262 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात और कही कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट कैन बार द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट. अगेन, अंडर 262 क्लॉज 2 Constitution has stated that Parliament can bar the jurisdiction of all courts, including Supreme Court, from such disputes. यानी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड किसी भी मसले में पार्लियामेंट चाहे तो सारे कोर्ट्स और इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के भी जुरिस्डिक्शन को बार कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट इन मसलों में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है. तो ये दो प्रोविजन है आर्टिकल 262 के अंदर इन फॉर्म ऑफ क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2.
अब ये तो इनएक्टमेंट के साथ ही आ गया न। अब आइए 90, कम टू 1956। इन 1956 Parliament, in pursuance of the provisions of Article 262, enacted two laws. One is River Boards Act, both in 1956, and second is ISWADA, Interstate Water Disputes Act. So ये एक्ट्स के हम ब्रॉडर फ्रेमवर्क देखेंगे, डिटेलिंग जब हम करंट अफेयर्स करेंगे तब देखेंगे कि दीज एक्ट्स हैव बीन अमेंडेड इन नंबर ऑफ टाइम्स। तो अभी एग्जैक्टली क्या है, ब्रॉडर फ्रेमवर्क तो वही रहेगा, उसके डिटेलिंग्स बदलेंगे टाइम के टाइम। तो हम अभी फ्रेमवर्क पे आते हैं। सो अंडर रिवर बोर्ड एक्ट्स पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश रिवर बोर्ड एक्ट। तो रिवर बोर्ड्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बट कैसे बनाएगी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, रिवर बोर्ड्स बनाएगी। पर्पस क्या होगा कि ये जो रिवर बोर्ड्स है ये एडवाइज करेंगी स्टेट गवर्नमेंट को फॉर बेटर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ रिवर बोर्ड, रिवर इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। ठीक है, रिवर बोर्ड्स एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर बोर्ड्स एस्टैब्लिश करेंगी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पर्पस क्या होगा, टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट। ये रिवर बोर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगी किस मसले पर, फॉर बेटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिवर इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। तो ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क है रिवर बोर्ड्स एक्ट का। अब आते हैं ISWADA। ISWADA सेम ईयर 1956, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। इसके अंदर दो प्रोविजंस आए जो आपको जानना जरूरी है। पहला तो पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को थ्रू दिस एक्ट एम्पावर किया कि फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाएगी। हर डिस्प्यूट जो भी जैसे जैसे डिस्प्यूट आते जाएंगे आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कीप क्रिएटिंग एडहॉक ट्रिब्यूनल एंड द डिसीजन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल क्रिएट किया, और एडहॉक मीन्स ऑन टेम्पररी बेसिस, ऑन फंक्शनल बेसिस। काम खत्म हुआ, आप खत्म हुए, ठीक है। सो द डिसीजन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तो पहला प्रोविजन ये था। एंड सेकेंड प्रोविजन ये किया गया ISWADA एक्ट से कि ऑल द कोर्ट्स, ध्यान से सुनेंगे, ऑल द कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, all the courts including Supreme Court have been barred from exercising any sort of jurisdiction over these disputes. Through ISWADA Act, all the courts including Supreme Court have been barred from exercising any jurisdiction over interstate water disputes. कोर्ट इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्लियर है ये। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, तो वाटर डिस्प्यूट्स के जाते हैं मसले सुप्रीम कोर्ट में। तो एग्जैक्टली कौन सा प्रोविजन लगता है, क्योंकि ISWADA तो साफ साफ कह रहा है, ये आप कमेंट में बताएंगे या फिर जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगी तब बताएंगे। तो ये बस इन आर्टिकल 262 के अंदर यही बातें हैं, और इन बातों की परसुएंस में दो क्लॉजेज हैं, दोनों की बातें हमने दिख ली। और इन क्लॉजेस के, इन डायरेक्शंस के परसुएंस में पार्लियामेंट ने दो एक्ट इनएक्ट किए हैं, उनको हमने देख लिया। इससे ज्यादा आपको इस पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और प्लीज डोंट गो एंड रीड दिस टेबल्स। ये टेबल्स याद करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं लॉ में। सी just a minute. See why I'm teaching directly from your textbook. A lot of you may question like why she is teaching from the textbook itself, because कि आपकी ये किताब है ना, दिस इज वेरी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को रिफ्रेज करके, ताकि इजी वे में आप अंडरस्टैंड कर सके, स्टिल कीपिंग द एसेंस इंटैक्ट, उस तरह से रखा गया है। दिस ABC आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस ABC इज 263A, 263B एंड 263C। दिस यहाँ पे जो क्लॉज 1 एंड 2 मैंने डिस्कस किया, दिस इज क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द 262। बस इसको दिस बुक, ये किस किताब ने थोड़ा सा रिफ्रेज कर दिया है,
कीपिंग द एसेंस इंटैक्ट, ताकि आपके लिए जो लॉ की टेक्निकलिटी है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाए. फर्स्ट टाइमर्स, सेकेंड टाइमर्स, थर्ड टाइमर्स, उनके लिए ऑफकोर्स ये डिफिकल्ट है, बट ओवर द टाइम इफ यू रीड एंड रीड एंड रीड, यू विल गेट लिटिल बिट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हैंड ओवर इट, राइट. एंड अगर आपको बेयर एक्ट का नॉलेज है तो आपको समझ में ही आ जाएगा. सेकेंडली, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, क्रैश कोर्स ले रहे हो, इवेंचुअली यू हैव टू कम बैक टू दिस टेक्स्ट बुक. आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा. जो कोचिंग करते हैं ना उनको येलो बुक, ब्लू बुक मिलती है, बट वो लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं. सो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दिस बुक. और दिस बुक इज वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज नॉट फॉर द एकेडमिक पर्पस. इट हैज बीन रिटन फॉर द पर्पस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ओनली, राइट. सो दैट्स वाई. एंड सेकेंडली कि थर्डली कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी कि मैं अब यहाँ से कॉपी करूँ और पीपीटीज में पेस्ट करूँ. सो आई एम जस्ट डायरेक्टली टीचिंग यू फ्रॉम हियर ओनली. Once your exam is done and if I have a lot of time, then मैं भी पीपीटी बना लूंगी. कॉपी पेस्ट ही तो करना है. एनीवेज, चलिए. सो नाउ कम टू, देखिए इसमें बहुत सारी बातें लिख गई हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है. मैं आपको छोड़िए, मैं एसेंस समझा रही हूँ और यही एसेंस लेकर के आपको एग्जाम में जाना है. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन केयरफुली. जहां भी लगे कहानी हो रहा है आप फॉरवर्ड कर दीजिए. चलिए, इंटरस्टेट काउंसिल्स पे चलते. फर्स्ट पिलर हमने देख लिया. नाउ वी विल बी डीलिंग विद इंटरस्टेट काउंसिल. इफ यू सी, इंटरस्टेट काउंसिल्स आर डील्ड विद आर्टिकल 263 of the constitutions. So interstate councils किस आर्टिकल के हैं? अंदर आर्टिकल 263. And if you read article 263, it has empowered president to constitute interstate council at any time. Word बहुत important है. At any time, if it appears to the president, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा महसूस होता है कि इंटरस्टेट काउंसिल्स के एस्टेब्लिशमेंट से पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड. वर्ड याद रखेंगे. किस? इन द इंटरेस्ट ऑफ, in the larger public interest. So who can establish interstate council? President. At what time? At any time. When he or she feels that if interstate council is constituted, it will serve the larger public interest, president will establish interstate council at any time. ये याद रखेंगे आप. साइमल्टेनियसली, इसके अलावा प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश तो कर ही सकते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के. साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ऑथोराइज दैट बिसाइड establishing the interstate council, president has power to define nature of duties of the council, also its organization, also its structure. So president is vested with lot of powers when it comes to interstate councils. Whenever he is satisfied that if he or she establishes the interstate council, it will serve a larger public interest, president will establish the interstate council. And besides, president is empowered to define the nature of duties to the council, how the council will be organized, what will be the structure of the council. So हमने यहाँ तक तो देख लिया. देखिए, एक तो जनरल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जनरल ड्यूटीज स्पेसिफाई कर सकते हैं. इफ यू रीड आर्टिकल 263 क्लोजली, आप अगर आर्टिकल 263 को क्लोजली पढ़े तो यू विल सी कि प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्शंस है कुछ, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ड्यूटीज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. बट आर्टिकल 263 कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज मेंशन करता है. ऑलरेडी आर्टिकल 263 में काउंसिल के कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑलरेडी मेंशन्ड है, और इनके अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर है. प्रेसिडेंट को जैसा लगे, जैसा प्रेसिडेंट उचित समझे वैसा काउंसिल के साथ वो कर सकते हैं. सिंपल शब्दों में आप समझिए. तो under 263 there are certain specific duties and these are already mentioned in the 263. What are they? Firstly, the council is empowered to inquire into, see,
काउंसिल के पास ये काउंसिल को ये ड्यूटी दी गई है कि आप ये देखते रहिए कि आने वाले समय में जो क्या क्या प्रोबेबल डिस्प्यूट्स हैं जो स्टेट्स के बीच में अराइज हो सकते हैं, व्हाट आर द प्रोबेबल डिस्प्यूट्स दैट कैन अराइज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। आप इस जो प्रोबेबल डिस्प्यूट्स है जो अराइज हो सकते हैं उन पे आप इंक्वायर कीजिए एंड एडवाइज कीजिए। क्लियर है ये? सो दिस इज द फर्स्ट task of the council that is written in article 263. Secondly, 263 also says that explore the areas या फिर investigate the areas which are of common interest to the center and state. सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ ऐसे एरियाज को खोजिए जो दोनों के इंटरेस्ट को सॉल्व करते फुलफिल करते हैं। कॉमन इंटरेस्ट का एरिया खोजिए, एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट द एरियाज विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड डिस्कस कीजिए। सो 263 में जो दूसरी स्पेसिफिक ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एंड थर्डली 263 में जो तीसरी स्पेसिफिक ड्यूटी है वो 262 से ही आती है कि अब आपने जो कॉमन इंटरेस्ट की एरियाज को इन्वेस्टिगेट भी कर दिया, डिस्कस भी कर दिया, तो डू सम रिकमेंडेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस इस पे दीजिए ताकि बेटर कोऑर्डिनेशंस हो सके पॉलिसी एक्शंस में इन मैटर्स पे। क्लियर है आपको? there are three specific duties under article 263. First is to inquire into the probable disputes that may arise between states and advise upon those disputes. Secondly, investigate the areas of common interest between different states and discuss them. And thirdly, once you have investigated and discussed the areas of common interest, do some recommendations so that better policy coordination or better policy actions can be taken in this area. जैसे ही मैंने आपको 263 के अंदर ये डिस्प्यूट्स वाला एरिया बताया कि दिस इंटरस्टेट काउंसिल इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड एडवाइज upon मतलब इंटरस्टेट डिफरेंट स्टेट्स के डिस्प्यूट के बीच में इंटरस्टेट डिस्प्यूट में इंक्वायर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, एडवाइस दे सकती है। तभी आपके माइंड में अगर आप थोड़ा भी वेल रेड है पॉलिटी के, आपके माइंड में आर्टिकल 131 आना चाहिए। दैट अंडर आर्टिकल 131 इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्वायर डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है एंड दिस से द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। तो कहीं ना कहीं ये इंटरस्टेट काउंसिल की जो ड्यूटी है ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के एक्सरसाइज में इम्पेडिमेंट तो नहीं है। तो यू शुड नो कि दिस इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज बेसिकली complementary only. Why? Because if you आगे हम पढ़ेंगे कि इंटरस्टेट काउंसिल के जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एडवाइस देंगे, these are just रिकमेंडेटरी नेचर के हैं, राइट? इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, these are just रिकमेंडेटरी नेचर। But when it comes to the original jurisdiction of the Supreme Court, original jurisdiction means at first instance and also exclusive। याद रखेंगे जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं यानी दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है या फिर सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिस्प्यूट। सो फेडरल डिस्प्यूट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल मीन्स एट फर्स्ट इंस्टेंस, एक्सक्लूसिव में सिर्फ और सिर्फ आप पहली दफा में ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो भी डिसीजन होगी दैट विल बी फाइनल होगी और बाइंडिंग होगी। बट इंटरस्टेट काउंसिल रिकमेंडेशन ही दे सकती है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल।
सी नाउ कम, अब आर्टिकल तो पड़े हुए थे, 263 तो 1950 से है, बट कोई एक परमानेंट बॉडी नहीं बन रही थी। सरकारिया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है सेंटर स्टेट रिलेशंस में, सेंटर स्टेट रिलेशन पे सरकारिया कमीशन रिकमेंड करती है स्ट्रांगली फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263. So in pursuance of the recommendation of Sarkariya Commission, the then Janata Dal government headed by VP Singh established the Interstate Council in 1992. याद रखेंगे आप, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन आती है 1988 में, और 1990 में उस समय की जनता दल गवर्नमेंट जिसको हेड कर रहे थे वीपी सिंह, उन्होंने परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की है। अब हमारे पास हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू नो द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली और इट कैन बी मैन्यूवर्ड, right? So first and foremost, you should remember that the interstate council is chaired by the prime minister. Chair कौन होते हैं? PM. Do remember it very clearly. It headed by the prime minister, chaired by the prime minister. इसके अलावा who else can be the member of interstate council? See, chief minister of all states are members of interstate council. Chief ministers. Besides, in case of UTs having legislative assembly, there will be chief ministers, and UTs who do not have legislative assembly, there will be administrators. So both of these will be member of the interstate council. Besides, if any state is under president rule, then governor of that state would be member of interstate council. And lastly, remember this, fourth point I should highlight, that prime minister is authorized to nominate six cabinet minister, including, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर टू द इंटरस्टेट काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के 6 मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर के लिए, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। यानी होम मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे मेंबर। दिस, इफ आई हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन दैट इज डिफिकल्ट, मैं इसी लाइन पे कुछ फ्रेम करूंगी आपके लिए। So do remember it. Okay, so this is the about the composition of the council. याद रखेंगे आप कि the council, all the recommendations of the council are of advisory nature, and जो भी decisions लिया जाता है that is based on consensus. दो बातें याद रखेंगे आप। इसके अलावा याद रखेंगे कि काउंसिल की अपनी एक स्टैंडिंग कमिटी भी है। काउंसिल की अपनी एक स्टैंडिंग कमेटी है जो कि 1996 में एस्टैब्लिश की गई थी, एंड दिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल इज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। याद रखेंगे आप। और इसका पर्पस एक ही है कि काउंसिल के जो भी मसले हैं उसको उस पे थ्रू आउट द ईयर कंसल्टेशन होता रहे बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ओके, एंड बिसाइड्स दिस ऑल्सो रिमेंबर दैट इंटरस्टेट काउंसिल के पास अपना सेक्रेटेरिएट है, एंड फ्रॉम 2011 this secretariat of interstate council is also functioning as a secretariat of zonal council. ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कहानी में नहीं जाना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जहां भी डाउट हो, वीडियो अगर फास्ट करके देख रहे हैं तो भी करके सही है, डाउट हो ना वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, और जो पढ़ाया जा रहा है ना, रिवाइज कराया जा रहा है, उसको लिखिए, तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल। कुछ बातें 263 आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, 263 में क्या कहा गया है, और साथ ही साथ कंपोजिशन में प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। इंटरस्टेट काउंसिल और जनरल काउंसिल को मिक्स करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन किसको हेड करता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज की बात हुई थी अंडर
Under Article 261 of the Constitution, public acts, records, and judicial proceedings of different states. See, basically, full Article 261 of the Constitution basically talks about. Just a minute. Yes, Article 261 of the Constitution basically talks about full faith and credit clause. बेसिकली फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज है क्या और इसका पर्पस क्या है? सी हमने देखा है जब हम पढ़ रहे थे कि ईच स्टेट इज सोवरेन इन इट्स ओन स्फीयर, राइट? तो ये ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि एक स्टेट के किसी एक्ट को या फिर किसी रिकॉर्ड को दूसरे स्टेट में रिकॉग्निशन ही ना मिले। तो इस तरह की डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए, इस तरह की डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 261 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द प्रोविजन ऑफ दैट इज नोन एज फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। याद रखेंगे आप। एंड अंडर दिस आर्टिकल 261, फर्स्टली देयर इज अ जनरल rule. Firstly, there is a general rule, and how that rule is implemented and what are the line exception under line exception that is discussed thereafter. So let's discuss the first clause of article 261, that is a general rule. 261 clause 1, it is a general rule and it says that full faith and credit is to be given to the all public acts, records and judicial proceedings of center and every state throughout the territory of India. ये जनरल रूल है कि सेंटर और हर एक स्टेट के पब्लिक एक्ट को, रिकॉर्ड को एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग को क्या करना है? फुल फेथ एंड क्रेडिट देना है। ठीक है, कहां पर? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड व्हेन यू रीड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वेरी वास्ट। द एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज very vast. It includes states, it includes UTs and any other area acquired in the union for the time being. So Article 261 clause 1 is very general in nature and it says that to every public act, record and judicial proceedings, there has to be full faith and credit. Full faith and credit should be given throughout the territory of India to every public act, record and judicial proceeding of both center as well as state. क्लियर है ये? अब देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग तो हमें समझ में आता है थोड़ा, है ना, बट पब्लिक एक्ट क्या है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक एक्ट? व्हाट इज रिकॉर्ड? सो इफ यू रीड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 261, पब्लिक एक्ट को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज पब्लिक एक्ट? पब्लिक एक्ट इज those acts which are made by legislature or executive. Actions taken by legislature or the executive at both center as well as states. The actions taken by the legislature or executive of both center or state are known as public act. Now come, what is record? देखिए, whenever a public servant, just a minute. What is record? Whenever a public servant is discharging his or her duty and maintaining any record, any sort of record that is official, that is known as public record. So, and you know judicial proceeding. So what 261 clause 1 says, that to all public act, record and judicial proceedings of central and state government, full faith and credit should be observed throughout the territory of India. And you know now कि what is public act and what is record. So now this is a general rule. Constitution ने कह दिया कि full faith and credit, due respect देना है, but कैसे देना है? तो याद रखेंगे कि कैसे देना है, यानी मैनर क्या होगा? What would be manner of this exercise of full faith and credit? What would be manner? What would be effect of this exercise? And what would be the extent
to which this full faith and credit is to be given. So in the subsequent clause under 261, that is precisely under 261 clause 2, Constitution says the manner in which this full faith and credit is to be given, what would be the effect of this full faith and credit, and to what extent this full faith and credit is to be given, it will be determined by Parliament. That is, this exercise of the full faith and credit is subject to the law made by Parliament. याद रखेंगे आप, यही है 261 clause 2. Now come to judicial proceedings. तो when you read 261 clause 3, there is a provision that सिविल कोर्ट के किसी भी जज, सिविल कोर्ट्स के फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर्स को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट किया जा सकता है. एक स्टेट का कोर्ट है, अगर उसने कोई सिविल जजमेंट दिया है तो इंडिया के किसी भी और स्टेट में वो जजमेंट इन्फोर्सिएबल है. लेकिन दिस प्रोविजन इज लिमिटेड ओनली टू सिविल जजमेंट्स. याद रखेंगे, क्रिमिनल जजमेंट्स के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. एक स्टेट, दिस 261 clause 3 दैट इज फुल फेथ एंड क्रेडिट टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल जजमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, क्रिमिनल जजमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. यानी एक स्टेट के पीनल लॉज को दूसरे स्टेट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता. याद रखेंगे आप, एक स्टेट के पीनल लॉज को दूसरे स्टेट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, लेकिन एक स्टेट का सिविल जजमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी इन्फोर्सिएबल है. दिस इज अबाउट फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग. क्लियर है आपको? दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 261 of the Constitution, and this is about full faith and credit. See, आपसे ना वन लाइनर पूछा जा सकता है कि full faith and credit clause exactly क्या है. देखिए, जो बिगनर होंगे, जो पहली बार ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए ये कंसेप्ट शायद भारी लग रहा हो, राइट, बहुत मुश्किल लग रहा हो. लेकिन याद रखिए कि जहां भी कंसेप्ट डिफिकल्ट है ना, क्वेश्चन, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि उस एरिया से क्वेश्चन इजी आएंगे. इफ द कंसेप्ट इज डिफिकल्ट, द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इज रिलेटिवली इजियर. तो आपको ना कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर है, सिलेक्टिव रीडिंग करके जानी है, एंशिएंट मेडिवल तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ के जानी है कि जो इजी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एरिया से और जो डुएबल है वो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरिट उन्हीं पे बनती है. क्लियर है ये? चलिए, नाउ विल बी मूविंग टू द थर्ड पिलर, एंड थर्ड पिलर इज dealt with article 301 to 307, and it discusses the freedom of trade, commerce and intercourse. See, you should be doing your PYQs. I will keep inserting in between the importance of PYQs. Okay, so freedom of trade, commerce and intercourse has been dealt with article 301 to 307. Why I am discussing, why I am highlighting articles? There is a very less probability कि आपको एग्जाम में freedom of trade, commerce and intercourse के articles पूछे जाए, because I am going to discuss you कि 301 में क्या लिखा है, 302 में क्या लिखा है. We are going to discuss exactly article wise, so that एक mind में structure form हो जाए. That is why I am emphasizing over the articles of the related articles to the freedom of trade, commerce and intercourse. Okay, so if you read article 301 of the Constitution, it is a general provision, and all the general provisions are coupled with the exceptions. अगर कोई जनरल प्रोविजन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक्सेप्शन होगा ही. सो अंडर आर्टिकल 301 देयर इज अ ह्यूज फ्रीडम दैट इज गिवन इन जनरल, एंड पोस्ट आर्टिकल 302 to 305 this general freedom under article 301 is subject to the specific restrictions as discussed in article 302 to 305. तो सबसे पहले हम आर्टिकल 301 में जो
फ्रीडम दिया गया है, जनरल फ्रीडम, उसकी बात कर लेते हैं. सो व्हेन यू रीड आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. What said Article 301? Trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. See, this is a very huge and general statement. And this this freedom of trade, basically 301 deals with freedom of trade. This can be asked in match of following. Freedom of trade is both, this deals with both interstate freedom and intrastate freedom. What is interstate? Within two or more states. What is intrastate? Within the borders of a state. So basically the freedom given in Article 301 ensures free flow of trade throughout the territory of India, irrespective of borders of a state. Clearly, 301 में जो freedom दिया गया, freedom of trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. This freedom talks about both interstate and intrastate. Interstate means this freedom is also talking about freedom of trade between two or more states, right? And intra means within the boundary of states. So basically under 301 Constitution ensures that free flow of trade throughout the territory of India, irrespective of borders of a state. याद रखेंगे आप. So this is general freedom guaranteed under Article 301. This is a general freedom. As we discussed, this freedom given in Article 301 is subject to the restrictions given in Article 302 to 305. So now we will be discussing Article 302 to 305. These are limitations associated with freedom in Article 301. So let's go to 302. These are the restrictions. When you read Article 302, basically this clause written, this is Article 302. So basically if you read 302, it says that the freedom given in Article 301 is not unrestricted, not unlimited. It is subject to the restrictions made by Parliament. Restrictions made by Parliament. So basically, Parliament under Article 302 can impose restrictions on the freedom given in Article 301. On which ground? In the public interest. याद रखेंगे आप, पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट जो 301 में फ्रीडम की बात की गई है उस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. साथ ही साथ पार्लियामेंट पे कोई एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि पार्लियामेंट जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, याद रखेंगे, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट स्टेट्स, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रीफरेंस नहीं दे सकती है, फर्स्टली. सेकेंडली, दो डिफरेंट स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है. ठीक है. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट कैनॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर और नीदर इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू स्टेट्स. बट ये कब है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में. लेकिन एक एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है जहां पे पार्लियामेंट कैन डिस्क्रिमिनेट अमंग द स्टेट, पार्लियामेंट कैन गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अदर. और वो कौन सा सिचुएशन है? ध्यान से सुनिएगा. सी, जब whenever there is a scarcity of good, याद रखिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है, scarcity of goods in any part of India, देश के किसी भी कोने में किसी गुड की scarcity हो जाए, in that situation constitution is all empowered to parliament is all empowered to impose restrictions in such a way that gives preference to one state over other or to discriminate among the states. So basically parliament के पास ये
पावर है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में रिस्ट्रिक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कंडीशन एक ही होना चाहिए कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के किसी भी पार्ट में गुड्स की स्कार्सिटी हो जाए, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 302। व्हेन यू रीड आर्टिकल 303, it deals with power of state legislature to impose restrictions over restrictions on this freedom exercise, freedom given in 301 with the state or within the state. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विथ और विद इन। सो अंडर आर्टिकल 303 स्टेट लेजिस्लेचर जो है 301 के एक्सरसाइज, 301 में जो फ्रीडम दी गई है उसके उस फ्रीडम के एक्सरसाइज में अपने विथ द स्टेट मीन्स जो स्टेट लेजिस्लेचर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है किसी और के साथ, या फिर विद इन द स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। बट कंडीशन क्या है कि इस तरह की अगर फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे 301 पे अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो 303 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को बिल इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो बिल तभी इंट्रोड्यूस होगा जब उस बिल को प्रेसिडेंशियल सैंक्शन मिलेगा। याद रखेंगे आप, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एवरी बिल imposing restrictions on freedom of trade, commerce and intercourse, whether it is within the state, within that state or with any other state, has to be introduced in the state legislature with prior sanction of the president. याद रखेंगे, ये बात हो गई। दूसरी बात कि 302 में हमने देखा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट प्रीफरेंस दे सकती है स्टेट्स को, डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है स्टेट्स के साथ इन ए सर्टेन कंडीशन, राइट। और एक कंडीशन क्या था कि स्कार्सिटी हो जाए। 302 में हमने देखा था गुड्स की स्कार्सिटी हो जाए। 303 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, यानी 303 में स्टेट लेजिस्लेचर 301 पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं विद इन द स्टेट या फिर विथ एनी अदर स्टेट। इसके लिए प्रेसिडेंशियल सैंक्शन की आवश्यकता है, पर स्टेट लेजिस्लेचर प्रीफरेंस नहीं दे सकते कि ओके एक्स स्टेट है जो है वाई विल बी मोर प्रिफर्ड एंड जेड विल बी लेस प्रिफर्ड। दिस ये प्रीफरेंस या फिर डिस्क्रिमिनेशन का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर प्रीफरेंस नहीं दे सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 303। अगेन आर्टिकल 3, if you read article 304, there is a concept of discriminatory prohibition. What happened? Prohibition of discriminatory taxes. And what it says कि सपोज जिस पेन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पेन एक्स स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्स स्टेट इस पेन पे कोई टैक्स इंपोज कर रहा होगा, ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरर है जो इस पेन को एक्स स्टेट में मैन्युफैक्चर कर रहा है और कुछ उस स्टेट के टैक्स के हिसाब से टैक्स उस पे लग रहे हैं। कोई दूसरा अब एक बिजनेसमैन है जो मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा है इस पेन को, लेकिन किसी दूसरे स्टेट से इसी पेन को सिमिलर मतलब इसी क्वालिटी के पेन को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक स्टेट में एक दूसरा बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट कर रहा है सेम क्वालिटी ऑफ पेन को, सिमिलर गुड को, जो कि उस स्टेट में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये जो प्रोविजन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस, दैट इज डेल्ट इन आर्टिकल 304, ये कहता है कि इस स्टेट में जो गुड मैन्युफैक्चर हो रही है और जो गुड इंपोर्ट हो रही है, अगर वो सिमिलर क्वालिटी की है तो उस पर सिमिलर टैक्सेस लगेंगे। यानी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड इंपोर्टेड गुड ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। टैक्स अलग अलग नहीं लग सकते हैं, यही बात है ये 304 में कहा गया है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस। अब लास्ट है
जो 301 में जो फ्रीडम दी गई है दैट इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉज, राइट। 305 हमने कहा था 302 to 305 आर एक्सेप्शंस। सो अंडर 305 सेज कि जो 301 में जो फ्रीडम डिस्कस की गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंटरकोर्स एंड कमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, इट इज सब्जेक्ट टू 305 एंड 305 डील्स विद नेशनलाइजेशन लॉ। एंड वी नो कि नेशनलाइजेशन से क्या क्रिएट होता है, मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट इधर सेंटर और स्टेट्स। सो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में पार्लियामेंट, स्टेट्स के केस में स्टेट लेजिस्लेचर, दे कैन मेक लॉज और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो सर्टेन गुड्स है वो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट उसमें ट्रेड करेगी। यानी अगर ये प्रोविजन हो जाए एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ट्रेड करेगी, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। एंड इस केस में जो वो गुड है, वो सर्टेन गुड जो है उस पे वो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए उस पर ट्रेड करना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होगा, या फिर कुछ पार्शियल रिलैक्सेशन भी दिया सकता है डिपेंडिंग upon the laws of parliament and state legislature. So the under article 305 says that the freedom given in article 301 with respect to trade, commerce and intercourse should be exercised subject to the limitations of nationalization laws, and that is laws providing for monopolies in the course of trade of certain laws in favor of center and state. याद रखेंगे आप। The article 306 now yes restrictions हो गए। Now article 306 has been repealed. Under article 307 constitution empowers parliament to appoint an authority and appoint this authority and endow him with certain powers and duties that will empower him to ensure that the provisions under article 301 to 306 are implemented properly. बेसिकली 307 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया है और कहा है कि आप एक ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट कीजिए कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड 301 के अंदर जो फ्रीडम है, यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स और इंटरकोर्स और इससे रिलेटेड बाकी जो भी प्रोविजंस है 2, 3, 4, 5 में, उसका वो अथॉरिटी सही से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसको इंश्योर करे। सो दिस इज डेल्ट इन आर्टिकल 307, बट पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसे कोई लॉ इनैक्ट नहीं किया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट freedom of trade, commerce and intercourse that is dealt in article 301 to 307 of the constitution. I hope it is clear to you, and if it is not, please pause the video, इसको बैकवर्ड मतलब जहां से बिगिन हो रही है डिस्कशन जाइए और एक बार फिर से सुनिए, और जो भी आपके यहाँ पे आपने हाईलाइट किए होंगे, मार्क किए होंगे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप चाहे तो ये नोट्स भी बना सकते हैं जो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। दिस विल बी वेरी हैंडी फॉर यू, होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट दिस डिस्कशंस जो भी इनको फॉलो करेंगे, these discussions are going to helpful for you. So we have reached almost end of the class. जो फोर्थ पिलर हमने बात की थी, यस जो चार कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स हमने बात की थी कि चार पिलर्स पे डिवाइड करता। फर्स्टली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, दैट इज डेल्ट विद आर्टिकल 262, then interstate council article 263, then full faith and credit clause 261, freedom of trade, commerce and intercourse that is dealt with 301 to 307 हमने ये डिस्कस कर लिया है। इसके एडिशन में हमने कहा था कि जोनल काउंसिल्स भी हैं जो इंटरस्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं, इंटरस्टेट कमिटी को प्रमोट करते हैं, एंड दीज आर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो अब हम जोनल काउंसिल्स को
देखेंगे। जोनल काउंसिल्स हमने यहाँ पे अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। याद रखेंगे जोनल काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जोनल काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हैज मेड जोनल काउंसिल्स बाय इनेक्टिंग एन स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मीन्स लॉ। क्लियर है ये? चलिए, and the sole purpose again to teach you from this directly from this pages कि चीजें मेरे आंखों के सामने रहती है so that कुछ skip ना हो, right? Anyway, so let's discuss about zonal councils. So as we have discussed कि zonal councils are statutory body, not the constitutional body. एंड टिल अब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दीज आर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट. दीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया और उससे बनाया. क्या है? पेरेंट एक्ट 1956 की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. दिस इज द पेरेंट एक्ट ऑफ जोनल काउंसिल्स. याद रखेंगे आप, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 is the parent act of zonal councils, and this state reorganization act divided the country into 5 different zones. याद रखेंगे, this state reorganization act divided the country into 5 different zones, and what were the criteria? Criteria included the natural division of the country, firstly. Secondly, the river system and means of communication. Thirdly, cultural and linguistic affinity. And fourthly, economic development and security, law and order. So these are the 4 criteria based on which state reorganization acts divided the entire country into 5 different zones, and for each zone it established one council. Clear है ये? Based on these 4 factors that we have discussed, State Reorganization Act divided the country into 5 different zones, and for each zone it established one zonal council. So in total there is 5 zonal council. याद करेंगे आप, टोटल कितने जोनल काउंसिल्स है? We have 5 zonal councils. कौन कौन से? We have Northern, we have Central Zonal Council, we have Eastern Zonal Council, we have Western Zonal Council, and we have Southern Zonal Council. So there are 5 zonal councils in total. याद एक और बात आप माइंड करेंगे, देयर इज ईस्टर्न जोनल काउंसिल बट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो अभी हम आगे पढ़ेंगे दैट इज नॉट अ जोनल काउंसिल. वी ऑलरेडी हैव अ ईस्टर्न जोनल काउंसिल बट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो हम आगे पढ़ेंगे दैट इज नॉट अ जोनल काउंसिल. आगे हम देखेंगे टोटल कितने जोनल काउंसिल्स हैं हमारे पास. वी हैव 5 जोनल काउंसिल्स. What were the factors taken into consideration? Natural division of the country, its river system and means of communication. Third, cultural and linguistic affinity. And fourth, what were the requirements of economic development, security and law and order of the zones of the region. On the basis of that, the State Reorganization Act divided the country into 5 different zones: North, Central, East, West and South. And for each zone, this act established one zonal council. So we have in total 5 zonal councils. That's it. Clear? So अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ जोनल काउंसिल. याद रखेंगे आप कि all the zonal councils are headed by होम मिनिस्टर्स. जितने भी जोनल काउंसिल्स हैं दे आर हेडेड बाय होम मिनिस्टर. बिल्कुल याद कर लेंगे. नॉर्थ ईस्टर्न इंटर स्टेट काउंसिल कौन हेड करता है आप कमेंट में बताएंगे. याद रखेंगे ऑल द जोनल काउंसिल्स आर हेडेड बाय होम मिनिस्टर. बिसाइड्स दैट और कौन मेंबर हो सकते हैं उस जोन में? जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं. प्लस अगर उस जोन में कोई यूटी है तो या तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं अगर वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो, या फिर वहां पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो सीएम हो सकते हैं. प्लस हर स्टेट से टू बिसाइड्स दिस
ईच स्टेट से, उस जोन में जितने भी स्टेट हैं, ईच स्टेट से 2 मिनिस्टर्स विल बी नॉमिनेटेड। याद रखेंगे आप। ये कंपोजिशन है आपके जोनल काउंसिल का। एंड आपकी ये जो जोनल काउंसिल है ये एडवाइजरी बॉडी है। इसके रिकमेंडेशंस बस एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। कंपोजिशन याद रखिएगा, चेयर कौन करता है याद रखिएगा, पेरेंट एक्ट क्या है, कितने जोनल काउंसिल्स हैं, ये नंबर याद रखिएगा, क्या बेसिस पे, व्हाट वर द फैक्टर्स ऑन विच द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इनटू डिफरेंट जोन्स। थोड़ा सा माइंड में रहेगा ये आपके। एंड ये काउंसिल कौन हेड करता है, फिनेंस में होम मिनिस्टर हेड करते हैं। एंड द एडवाइज एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, जोनल काउंसिल आर एडवाइजरी, दैट इट इज नॉट बाइंडिंग। बाकी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाकी सारी चीजें कर लेंगे, इतना ही आपको रिवाइज करके आगे बढ़ना है। ओके, नाउ कम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। सी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आफ्टर रिपीटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यही लगता है कि देयर आर 6 जोनल काउंसिल। उनसे अगर सवाल पूछा जाएगा कोई टेस्ट सीरीज में, या फिर यूपीएससी पूछे, सिंपल सवाल पूछे कि नंबर ऑफ जोनल काउंसिल्स कितने हैं, पीपल विल आस्क कि 6 जोनल काउंसिल्स। दिस इज रॉन्ग। जोनल काउंसिल्स कितने हैं? 5 है। किस एक्ट के तहत बने हैं? व्हाट इज द पेरेंट एक्ट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। And we already have a Eastern Zonal Council, remember, under this. When it comes to Northeastern Council, इसका नाम ही है Northeastern Council and it is not a Zonal Council. याद रखेंगे आपकी, Northeastern Council is not a Zonal Council. It was created, again it was created by the Parliament only. It is a statutory body again. याद रखेंगे आप, it is a statutory body that has been created in 1971 by the Parliament itself, and the name of the act is Northeastern Council Act. So Northeastern Council is a, ये institution का name है। Zonal Council, Northeastern Council is not a zonal council. It has been established in 1971 through an act of Parliament known as Northeastern Council Act. There are 8 states, all the seven sisters of Northeast plus Sikkim, 8 states हैं। एंड मेनली फंक्शन क्या है इस काउंसिल का? टू फॉर्मुलेट रीजनल प्लान फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, साइमल्टेनियसली to review the measures taken by the states for the maintenance of security and public order in northeastern region. ये मेनली फंक्शन है इसका। तो देख लेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में 8 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम है। फंक्शन क्या है? रीजनल प्लान को कोऑर्डिनेटेड वे में फॉर्मुलेट करना है, और साइमल्टेनियसली जो भी स्टेट्स हैं इस काउंसिल के अंदर, वो सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो भी मेजर्स ले रहे हैं उनको रिव्यू करना है। बिकॉज ये जो 8 स्टेट्स हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉमन development needs, some sort of common threats, some sort of they have common physiography, so that's why they have been kept under separate category. याद रखेंगे आप, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बस इतनी ही सी बात है, आपको इंटरस्टेट रिलेशंस में पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करना है। इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। जहां भी डिस्कस कराया गया है आप नोट्स बना सकते हैं, और पीवाईक्यूज करते रहिए। देखिए, आप जितना पीवाईक्यू को डिले करेंगे, नॉट ओनली फॉर पॉलिटी बट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग योर सीसैट, आप जितना पीवाईक्यू को डिले करेंगे उतना आप इस एग्जाम से दूर होते जाएंगे। तो मेक श्योर कि यू आर डूइंग पीवाईक्यू। आप किसी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए। अगर समय कम पड़ रहा है और आपको चुनना पड़े ना, इफ यू हैव टू चूज, देन गो विद पीवाईक्यू और अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। सो विद दिस नोट आई विल कंक्लूड टुडेज क्लास। टुमारो वी विल बी डीलिंग विथ इमरजेंसी प्रोविजंस एंड mapping of Europe. These 2 classes will come. Thank you very much.